ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਗੋਥਿਕ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੋਥਿਕ ਲੈਟਰਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟਸ A to Z, ਨੰਬਰਸ 0 to 9 ਤੇ ਸਿੰਬਲਸ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਇੰਗ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਫਰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੇ ਡਬਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲੈਟਰਸ ਉਹ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਲਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਪੈਨਸਿਲ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੋਕ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲੈਟਰਸ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਥਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਬਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲੈਟਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ, ਸੈਕੰਡ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਥਰਡ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਸੈਕੰਡ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਥਰਡ ਸਟ੍ਰੋਕ, एंड उसी तरह ही 1 2 3। सो ये ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਡਬਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਟਰਸ ਥਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲਿਖਾਂ, ਸੇ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ A, ਤਾਂ A ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ H ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵਿਡਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਡਥ W ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ H ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ W ਹੈ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਈਟ ਤੇ ਵਿਡਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਟ ਆਫ ਦ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦ ਵਿਡਥ ਆਫ ਦ ਲੈਟਰ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਮੀਨਸ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਲੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਲੈਟਰ ਮੀਨਸ ਹਾਈਟ ਆਫ ਲੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ H ਤੇ W ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਸੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ 28 ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 7:4 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ W ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, W ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਿਸ ਰੂਲ। ਸਾਈਜ਼ ਮੀਨਸ ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦ ਲੈਟਰ, then we'll find the W. How we'll find the W? 7/4 equals to 28 हाइट है ते W ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 28 into 4 divided by 7. So 7 4s are 28. 4 into 4 16.
सो साडे कोल W है 16 mm नाउ। ठीक है, एक होर एग्जाम्पल इस दे विच ही से साडे कोल सानू हाइट दिती हुई है 35 mm दी, रेशो 7:4 है, तो W कितना होएगा? अगेन 7/4 जो भी रेशो सानू दिती हुई है, 35 हाइट, W असी फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो की आएगा 35 × 4/7, देन 7 5s are 35, 5 × 4 20, सो 20 mm साडे कोल विड्थ आ गई। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स तुहानू ये दो एग्जाम्पल्स नाल क्लीयर हो जाएगा कि जे सानू H दिता होया तो असीं W किवें फाइंड करना है। इन केस कुछ प्रॉब्लम्स दे विच तुहानू W दिता होवे तो तुसीं H भी सेम मैथड दे नाल फाइंड कर सकते हो। उस तो बाद हुण स्टूडेंट्स सानू H W ते रेशो बारे पता है, तो आप हुण शीट जिहड़ी है लैटर्स लिखने ने किदां स्टार्ट करांगे। तो उस लई सब तो पहला तुसीं गाइडलाइनस ड्रॉ करनियां ने। गाइडलाइनस हुंदियां ने दो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइनस ड्रॉ कीतियां, मैं फ्री हैंड यूज कर रही हाँ, इसनूं फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हाँ, तुसीं शीट ते इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प दे नाल ड्रॉ कर सकते हो। सो दो गाइडलाइनस ड्रॉ कीतियां। सो दो गाइडलाइनस दे विच असीं कितनी स्पेस छड्डनी है? इक्वल्स टू द हाइट, जिन्नी सानू हाइट दी होएगी उन्नी असी जगह छड्ड के ये गाइडलाइनस ड्रॉ करनियां ने। गाइडलाइनस दे बारे विच जिहड़ियां गाइडलाइनस असी बनाने आ, दीज आर एक्चुअली ये रेफरेंस वास्ते हुंदियां ने, ये शो नहीं करनियां हुंदियां, बट जेकर आप इन्हां नूं बना रहे हैं दे आर टू बी ड्रॉन, ये बहुत लाइट होनियां चाहिदियां ने, थिन होनियां चाहिदियां ने। ठीक है, सो ये वास्ते आप यूजली जिहड़ियां पेंसिल्स ने वो लाइटर पेंसिल्स यूज करांगे। लाइट पेंसिल लाइक H, 2H, 3H ग्रेड दियां पेंसिल्स आप गाइडलाइनस वास्ते यूज करांगे। उस तो बाद जो आप गाइडलाइन ड्रॉ कर लेती है, देन आप एक स्टार्टिंग पॉइंट इसका मान लांगे जिथों आप स्टार्ट लिखना शुरू करना चाहते हैं। सपोज मैं इस पॉइंट नूं स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। उस तो बाद असीं इसकी विड्थ मार्क करांगे, जिन्नी आप हाइट लीती है स्टूडेंट्स, जिन्नी सानू मैंशनड होएगी उहदे अकॉर्डिंगली आप उसका W भी फाइंड कर लेना है। देन वी विल फाइंड द विड्थ मार्क की, चौथे विड्थ आप मार्क की है, वो तो आप राइट एंगल ते लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, हुण तुसीं देख सकते हो ये एक ब्लॉक बन गया है। यह ब्लॉक एक स्पेस है जिहदे विच असीं अपना अल्फाबैट या लैटर लिखना चाहते हैं। हुण नैक्सट ब्लॉक की जगह तो थानू थोड़ी जी जगह स्पेस छड्डनी पएगी, बिकॉज एकदम टचिंग अल्फाबैट्स या लैटर्स नहीं लिखने। सो कुछ भी स्पेस है तो छड्डी, देन अगेन राइट एंगल ते लाइन ले लेती, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेती, फिर विड्थ मार्क की ते पैरेलल लाइन उसते ड्रॉ कर लेती। फिर स्टूडेंट्स आप कुछ स्पेस छड्डनी है। एक चीज स्पेस छड्डन वेले ध्यान रखना है, आप जिन्नी भी स्पेस छड्डांगे पहली बार सानू हर वारी उन्नी ही स्पेस छड्डनी पएगी। इट शुड बी यूनीफॉर्म थ्रू आउट। इसका कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है कि इन्नी ही छड्डनी हुंदी है, बट जिन्नी भी आप लैने हैं, सपोज 1 mm, 2 mm और 3 mm, वो सारियां च फिर बराबर ही छड्डनी है। सो अगेन तीसरा ब्लॉक बनावांगे, विड्थ लिती और तो परपेंडिकुलर लाइन, स्पेस छड्डी, फिर पैरेलल लाइन, फिर विड्थ मार्क की, पैरेलल लाइन। इस तरह मैं कुछ ब्लॉक्स इदा विड्थ दे नाल बना लांगी। स्टूडेंट्स ये जिहड़े आपां ग्रिड्स बना रही हां मैं, ये बहुत ही लाइटर होने चाहिए ने, ये तुहाडे लैटर्स दे विच मिक्स नहीं होने चाहिए। सो वैरी लाइट पेंसिल, ते जदों तुसीं लाइट पेंसिल यूज करनी है या कोई भी पेंसिल यूज करनी है, तुसीं बिल्कुल भी पेंसिल दे उत्ते लैड दे उत्ते प्रेशर एग्जर्ट नहीं करना। सो दे आर वैरी लाइट। हुण मैं इस दे विच लिखना शुरू करांगी।
सपोज मैं अल्फाबेट से लिखदी हाँ, फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट अल्फाबेट, फिर सेकंड ब्लॉक दा सेकंड, इसी तरह थर्ड, जो भी लिखना चाहते हैं, एनीथिंग विच वी वांट टू राइट, वो उसकी अपने अपने स्पेस दे विच लाइक दिस। सो इस तरह असी अपना जो है लैटर्स वो लिख सकांगे। सो ये जिहड़े स्टूडेंट्स मैं तुहानूं लैटर्स लिख के दिखाए ने, ये सारे वर्टिकल लैटर्स ने। वर्टिकल का मतलब कि जिहड़े आपां बॉक्स बनाए हैं, ग्रिड्स बनाए ने, इस बॉक्स का जिहड़ा स्टैम है वो बेस तो 90 डिग्री ते है। सो सारे लैटर्स जिहड़े अल्फाबेट्स तुसीं देख रहे हो, दे ऑल आर वर्टिकल, क्योंकि इन्हां दे जिहड़ा दी स्टैम है वो 90 डिग्री दे। इस तो बाद मैं तुहानूं दसांगी इनक्लाइंड और इटैलिक लैटर्स बारे। अगेन द मेथड इज सेम। फर्स्टली वी विल ड्रॉ टू हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ठीक है जी। उन्हां दे विच आपां एक स्टार्ट पॉइंट मान लांगे जिथों आपां स्टार्ट करना है। इनक्लाइंड ते इटैलिक लैटर्स वो हुंदे ने जिहड़े कि एंगल ते होण। यूजली ये एंगल आपां 75 डिग्री दा लैंदे आ। इस तो इलावा ये कोई होर एंगल भी हो सकता है। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स तुसीं 75 डिग्री दा एंगल रैफरेंस एंगल इत्थे बना लोगे लाइटर पेंसिल दे नाल ही। फिर हाइट ते विड्थ उवें ही सेम कंसैप्ट ही चलेगा। तुसीं इस पॉइंट तो विड्थ मार्क कर लेनी है, इस पॉइंट तो विड्थ मार्क कर लेनी है, एंड इहदे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये तुहाडा बॉक्स जिहड़ा बनिया ये टिल्टेड बनेगा, एंगल ते बनेगा। फिर इन्हां दो पॉइंट्स तो स्पेस इक्वल छड्डनी है, लाइन ड्रॉ कर लेती, स्पेस छड्डी, फिर विड्थ मार्क की दोनों पॉइंट्स तो पैरेलल लाइन, दैन स्पेसिंग दोनों पॉइंट्स तो टॉप एंड बिलो इक्को जही, फिर विड्थ लिती ते साडा नैक्सट ब्लॉक बन गया। इस तरह साडे ब्लॉक्स जिहड़े हैं वो ग्रिड तैयार हो जाएंगे। उस दे विच असीं अल्फाबैट सेम वे नाल लिखांगे जो आपां पहलां लिख रहे सी। बस हुण ग्रिड्स जिहड़े ने वो टिल्टेड ने, तां ही इन्हां नूं असीं इनक्लाइंड ते इटैलिक लैटर्स कहंदे आ। नाउ सी सेम मैथड बट बॉक्स दा जिहड़ा है फॉर्मेशन वो डिफरेंट है। देन बी C and so on. I hope ये दोनों दी जिहड़ा डिफरेंस है वर्टिकल ते इनक्लाइन लैटर्स ये तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।